Okay, so today we will do one activity of your chapter number 3 and page number 63. As you all know, in last class we have created one presentation that is about my school, and the Rohit was one person who was going to school and sharing his experiences, and according to that we have created one presentation. Any doubt anyone in that activity? That is given on page number 62. So we have already discussed that activity, and today we will design a new presentation given on page number 63 that is about water pollution. Okay, so this is the activity we have to design, this one. Prepare a presentation on water pollution and perform the following actions. So first of all, what we have to do? We have to take one presentation. From where we can open this thing? In PowerPoint. If you remember, yes, कुछ याद है या भूल गए? इतने दिन के बाद क्लास आई है आपकी. Okay, so first of all, for creating a presentation we have to open PowerPoint, and students who are not having laptop or computer, they can download Microsoft PowerPoint into their phone also. Okay, so with the help of phone you can create this presentation, and application name is PowerPoint. So how you can open? In your computer, right here, PowerPoint. Okay, so this is the application you have to open. If you are able to see, I will just zoom out. This one. Okay, so this one you have to open. Students who are having doubt, after 30 minutes I will give you a chance to clear your doubts. Okay, so this is your presentation, this or PowerPoint. So from here you can select any theme. So these are some different designs given, and in presentation we called it themes. So these are some different. So when you will click on this more theme, more design will be available. So from out of these design, आपको जो भी design पसंद आ रहा है, because our topic is water pollution. Okay, so we will go with anyone, whatever you would like to add. So different designs are available. You can go with anyone. Okay, suppose I am going with this one. I will choose this one, and from here I also have some different color option. Suppose I have chosen this one, click on create. So this is the first step you have to do whenever you have to open your presentation. Select any appropriate theme, जो भी आपकी पसंद की थीम है आपको वो चूज करना है, क्लिक करना है क्रिएट पे. ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक क्या है हमारा? वाटर पोल्यूशन. सो यू विल क्लिक ऑन दिस एंड स्टार्ट राइटिंग वाटर pollution. Correct? So this is the title of our presentation. And I ask you, whenever you are creating presentation, जब भी आप PowerPoint पे काम करोगे, हमेशा हर स्लाइड पे एटलीस्ट वन इमेज आपको इंसर्ट करनी है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हमें इमेज इंसर्ट करनी है, तो इमेज इंसर्ट हम कैसे करेंगे? इंटरनेट से पहले कुछ पिक्चर्स डाउनलोड करेंगे रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन. The one who are asking for the PDF, that thing you can ask in doubt counter beta. During when I am teaching something, concentrate on that. जब आपको प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है, पहले आप उसको सुनो, उसको समझो. जो रिटर्न वर्क है वो तो आपको मिल ही जाएगा बेटा. ठीक है, and for that all those kind of doubt we have last 10 minutes. That thing you can mention in that 10 minutes also. But during explanation, please concentrate. Is it clear, Ansachan? Okay, so this thing we have given the topic name. Now what we have to do? We want to insert some images related to water pollution. How we can do that? We will open Google Chrome browser, any browser जो भी आप use कर रहे हो. This thing we are doing, okay? And in Google we write water pollution. You will write this one, and from this right top corner you will click on images. Okay, तो images पे click करोगे and again you will write water pollution and click on enter. So it will give you the result of water pollution.
सो ऑल दिस इमेजेस आर रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन। तो इसमें से आपको जो भी इमेज आपको लगता है कि फ्रंट या फिर फर्स्ट स्लाइड पे होनी चाहिए, आप उसको क्या करोगे, सेव कर लोगे, ठीक है। सो आउट ऑफ दिस, so this is looking good, so I will save this image. Click on save image as. So हम कहाँ सेव करेंगे, देखो यहाँ पे इसकी लोकेशन आ रही है कि दिस पीसी डेस्कटॉप, मीन्स डेस्कटॉप पे आपकी इमेज सेव होगी। नाम इतना बड़ा, आप चाहो तो नेम चेंज भी कर सकते हो या फिर डिफॉल्ट नेम में भी इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। इज इट क्लियर कैसे आप इमेज डाउनलोड करते हो अपने फोन में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में। आपको गूगल पे लिखना है वाटर पोल्यूशन, देन सर्च, और सर्च करने के बाद आपको जो भी पिक्चर समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, उस पर आपको राइट क्लिक करना है, फिर आपको चूज करना है सेव इमेज एज। सेव इमेज एज करने के बाद आपको लोकेशन चूज करने की, कहाँ आपको उसको सेव करना है, ठीक है। सो वी विल मूव बैक हियर। अब हमें क्या करना है, इस स्लाइड पे हमें पिक्चर इंसर्ट करनी है। तो जब भी आपको किसी भी स्लाइड पे कुछ इंसर्ट करना होता है, फ्रॉम वेयर यू हैव टू इंसर्ट, which option we have to select, this insert option, okay। After home we have this insert option, just click on this insert, this one, okay। So when you will click on insert, you will get option this pictures. Are you able to see these pictures? So click on these pictures. Now this device, क्योंकि आपने अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में सेव किया है, so you will select this device. Next step, अब आपको क्या करना है, लोकेशन चूज करनी है। आपने अपनी इमेज कहाँ सेव की थी, कहाँ सेव की थी आपने इमेज, डेस्कटॉप पे। तो यहाँ से आप क्या सिलेक्ट करोगे, डेस्कटॉप। अब आप देखो डेस्कटॉप पे आपने जो इमेज सेव की थी वो ये रही, सो यू विल सिलेक्ट दिस वन एंड क्लिक ऑन इंसर्ट। क्लियर। सो अब देखो ये इमेज आपके बीच में आ रही है, बट आपका टॉपिक तो छुप गया, तो आप क्या करोगे, इसको क्लिक करोगे और इसको थोड़ा यहाँ साइड में ले आओगे। आप चाहो तो इसको आप छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। So in this way you can insert images in your presentation. अब देखो ये नीचे वाला बॉक्स आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे और क्रॉस पे क्लिक करोगे तो ये आपका हट जाएगा। इज इट क्लियर फर्स्ट स्लाइड, एनी डाउट एनीवन, कैसे आपको टाइटल देना है, कैसे इमेज सर्च करनी है, कैसे डाउनलोड करनी है और कैसे इंसर्ट करनी है, किसी को कोई डाउट इस फर्स्ट स्लाइड में? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू दिस वन? Okay, now we have done with the first slide. What we have to do next? We will go back in book part and check what next is. First, always collect the necessary information about the topic of presentation. तो जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाने जाते हो तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है वो आपको कलेक्ट करनी चाहिए। जैसे कि अगर वाटर पोल्यूशन है तो वाटर पोल्यूशन क्या होता है आप वो सर्च करोगे, वाटर पोल्यूशन क्यों होता है आप वो सर्च करोगे, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस हैं, जितना भी डेटा है, आपको वो सारा डेटा पहले कलेक्ट करना है कि दिस इज द रीजन ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड वेयर दिस इज हैपनिंग, व्हाई दिस इज हैपनिंग। सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू कलेक्ट फर्स्ट। ट्राई चेंजिंग द लेआउट ऑफ स्लाइड। अगर आप प्रेजेंटेशन बना ली आपने, फिर आपको लेआउट चेंज करना है, वो आपको करके देखना है कैसे करोगे। नई स्लाइड कैसे इंसर्ट करनी है, फिर उसमें टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट करना है, अब नेक्स्ट हम ये करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्लाइड हमारी कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक और स्लाइड इंसर्ट करनी है। सो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे फ्रॉम इंसर्ट, okay, you will get option, no, from home only, sorry, from home only we will get option here, new slide. Is it visible to all of you? New slide. तो जब आपको एक नई स्लाइड ऐड करनी है, you will click on home and there is one option new slide. अब न्यू स्लाइड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन की स्लाइड्स आ जाएंगी। इसको हम बोलते हैं लेआउट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेआउट, कि आपको ये वाला लेआउट चाहिए, ये वाला चाहिए, तो अलग अलग आपके वर्क के अकॉर्डिंग आपको किस टाइप का लेआउट चाहिए। अगर आपको सिर्फ टाइटल लिखना है या कुछ कंटेंट लिखना है तो फर्स्ट वन आप चूज करोगे। फिर अगर आपको टाइटल के साथ कुछ टेबल इंसर्ट करनी है, कुछ पिक्चर इंसर्ट करनी है, आप वो सिलेक्ट करोगे। तो सपोज मैंने ये वाला लेआउट सिलेक्ट किया, ठीक है, दिस वन। नाउ
अब हम इसमें ऐड करेंगे, फर्स्ट तो आपने दे दिया कि वाटर पोल्यूशन क्यों हो रहा है, सॉरी आपने टाइटल दे दिया कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो वाटर पोल्यूशन। नाउ अब आप नेक्स्ट क्या लिखोगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, आपने टाइटल दे दी कि वाटर पोल्यूशन होता क्या है। देन आप क्या करोगे, आप वापस गूगल पे जाओगे, यहाँ पे लिखोगे, वापस आप वेब पे जाओगे क्योंकि आपको वेब से डेटा चाहिए, इमेजेस नहीं चाहिए। अब वाटर पोल्यूशन होता क्या है, आप उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट सर्च करोगे, उसकी डेफिनेशन चूज करोगे। ठीक है, कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है। अब देखो, वाटर पोल्यूशन इज द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस इनटू बॉडीज ऑफ वाटर दैट मेक वाटर अनसेफ फॉर ह्यूमन। मीन्स वाटर पोल्यूशन क्या है कि उसमें ऐसे कुछ ऐसे कंटेंट ऐड हो जाते हैं कि जो वाटर को अनसेफ करते हैं फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। आप क्या करोगे, यहाँ से ये कंटेंट कॉपी करोगे नेट से। ठीक है, आप चाहो तो खुद से भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इंटरनेट से कॉपी भी कर सकते हो। आपने ये सिलेक्ट किया, इसको कॉपी किया, वापस प्रेजेंटेशन पे आओगे। अब आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर पोल्यूशन इसके बारे में लिखना है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। अभी ये कलर आपको विजिबल नहीं है, तो कलर हम कैसे चेंज करते हैं, दिस वन, होम टैब में यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलेगा थीम कलर का। ठीक है, आप यहाँ से अपना कलर चेंज कर सकते हो। Is it clear? From here you can change the color of text. Is it visible this color? Okay. अब आपने कलर चेंज कर दिया। अब मैं बोल रही हूँ कि आपको फॉन्ट भी चेंज करना है, तो इसी फॉन्ट ग्रुप में सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कलर चेंज करने के, फॉन्ट साइज चेंज करने के। ठीक है, अगर आपको साइज चेंज करना है तो आपको ये नंबर वाला दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे और साइज चेंज कर लोगे। ठीक है, फिर मैं आपको बोलती हूँ कि इसमें किसी किसी वर्ड्स को आपको क्या करना है, बोल्ड करना है। तो आप इसको सिलेक्ट करोगे, सिर्फ वाटर पोल्यूशन को आपको बोल्ड करना है। आपने सिर्फ वाटर पोल्यूशन सिलेक्ट किया, यहाँ पे बी पे क्लिक करोगे तो ये आपका बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आपको इसको अंडरलाइन करना है तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो यहाँ से। ओके, सो इन दिस वे यू कैन डिजाइन। और अगर आपको और बड़ा साइज करना है तो आप यहाँ से कैपिटल ए से इसका साइज बड़ा कर सकते हो। फिर अगर आपको इसका फॉन्ट चेंज करना है, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स आप चेंज कर सकते हो। It's not changing. We have to select this whole content. Okay, then we can change the font. So you can go with this Arial black. Is it clear to all of you कि फॉन्ट चेंज कैसे करते हो, अंडरलाइन कैसे करते हो, कलर चेंज कैसे करते हो, बिकॉज ऑल दिस ऑप्शन वी हैव कवर्ड इन चैप्टर नंबर 2 ऑल्सो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो अगर आप वर्ड यूज कर रहे हो या फिर पावर पॉइंट यूज कर रहे हो या फिर एक्सेल यूज कर रहे हो, सब में ही आपको फॉन्ट ग्रुप मिलेगा जिसमें आप कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। ठीक है, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। सो ऑल दिस ऑप्शन वी हैव इन ऑल द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। Is it clear to all of you? Done? This one is done. Next. Move the slides created in previous step to the suitable location that we will do later, क्योंकि अभी हमें move नहीं करना, हमारे पास सिर्फ 2 ही slides and then add notes to your presentation. अब हमें क्या करना है, notes add करने हैं। notes कैसे add करोगे, जैसे कि ये आपकी presentation है, यहाँ पे lower में आपको दिख रहा है note का option। Okay, this one, is it visible? I will scroll up a little bit. Okay, so here we have option this note. So जैसे ही आप note पे click करोगे, ये note सिर्फ आपके लिए है, ये आप जब presentation run करोगे ये visible नहीं होते। ठीक है, so you can check your page number given in your book, that topic, adding notes. Adding speaker notes. So this one is given on page number 57 if you want to check about these notes. Okay, so you can write here, I am writing about water pollution. This kind of notes you can insert. So from here you can insert notes. Done? Then we can leave this.
सो ये आपका क्या हो गया, नोट्स ऐड हो गए, ठीक है। ये स्टेप क्लियर हो गया। नोट्स कैसे ऐड करते हैं, जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है और जो भी आपको नोट्स डालने हैं आप नीचे लिख सकते हो, क्लियर। बट जब आप इसको रन करोगे देन इट विल नॉट बी विजिबल, ये सिर्फ आपके लिए है, प्रेजेंटेशन में विजिबल नहीं होंगे नोट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, सो दिस लॉग्ड आउट, सो आई विल लॉग इन अगेन। Okay, so next is apply the opulent theme to the presentation। अब वो बोले कि थीम चेंज करना है, तो थीम चेंज हम कहाँ से करेंगे, डिजाइन में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि opulent नेम से कोई थीम है या नहीं। Okay, so we are not able to find any opulent theme here. What kind of theme it is, I have no idea. I will check and let you know. So from here you can change the themes. Click on design और जो भी आपको कलर अच्छा लग रहा है, जो भी आपको डिजाइन अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप वो चूज कर सकते हो। काफी सारे थीम्स अवेलेबल है यहाँ पे। इज इट क्लियर? सो व्हेन यू विल क्लिक ऑन डिजाइन यू विल बी एबल टू चेंज द ऑप्शंस। अब जैसे कि ये आपका थीम है, इस थीम में आगे आपको वेरिएंट मिलेंगे। जैसे कि अगर आपने ये चूज किया, ये चूज करने के बाद आपको लगता है कि कंटेंट तो अच्छा लग रहा है बट आपको इसमें कुछ कलर चेंज चाहिए, तो आप इसको ब्लू भी कर सकते हो, पर्पल भी कर सकते हो और ये डार्क भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया बट इसका कलर अच्छा नहीं लगा, सो फ्रॉम दिस वेरिएंट यू कैन चेंज द कलर ऑल्सो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाउ यू कैन चेंज द थीम्स? ओके, next, view outline of your presentation in the left pane। Okay, so this is your left pane and this is the outline of your presentation, it's already visible। Next, view your presentation in normal view, slide sorter view and reading view। Okay, so now we have different options। So this one is your normal view, this one is your reading view and this one is your slide sorter view। तो हमारे पास हर प्रेजेंटेशन के 3 व्यू होते हैं, तो ये आपका क्या है, स्लाइड सॉर्टर व्यू, मींस इसमें आपने स्लाइड्स को सॉर्ट किया है। ओके, दिस वन इज स्लाइड सॉर्टर, यहां से आप चेंज करते हैं। फर्स्ट वन इज स्लाइड सॉर्टर, नेक्स्ट वन इज नॉर्मल व्यू एंड द नेक्स्ट वन इज जिसमें आपके पास बुक बनी है, दिस वन इज योर रीडिंग व्यू। इज इट क्लियर? आपने कर लिया कैसे व्यू चेंज करते हैं। ओके, सो वी विल गो बैक टू normal view, this one slide sorter view। Next, practice starting a slide show and going to next and previous। अब हमें क्या करना है, हमने एक बेसिक सी 3 स्लाइड की प्रेजेंटेशन बना ली, अब हमें इसका स्लाइड शो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक और स्लाइड ऐड करेंगे। कैसे कर सकते हो आप, न्यू स्लाइड, फ्रॉम दिस होम क्लिक ऑन न्यू स्लाइड। अब हमें क्या करना है, सिर्फ थैंक यू की इमेज ऐड करनी है कि सपोज हमारी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई तो हमें लास्ट में थैंक यू बोलना पड़ता है। सो फॉर दैट वी विल गो विद दिस ब्लैंक स्लाइड, एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे हम, ठीक है। ब्लैंक स्लाइड में लेने के बाद आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है। सो फॉर इंसर्टिंग पिक्चर यू विल क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन पिक्चर्स फ्रॉम ऑनलाइन। अब हम क्या करेंगे, ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे थैंक यू एंड क्लिक ऑन सर्च। तो जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे थैंक यू से रिलेटेड आपके पास ही इमेजेस आ जाएंगी, क्लियर। अब आपको जोन सी इमेज अच्छी लग रही है आप उसको सिलेक्ट करोगे और इंसर्ट करोगे, इस तरह से आपकी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी आपकी प्रेजेंटेशन बन गई, आपको इसको रन करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो कैसे करोगे, या तो आप कीबोर्ड से F5 की प्रेस कर सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होती है वो F5 की, विद द कीबोर्ड आई विल शो यू, ओके। बट अगर आपको यहां से करना है सो यू कैन गो इन स्लाइड शो ऑप्शन, दिस वन इज अ स्लाइड शो, or you will click on from beginning। So this is the presentation we have designed today, okay। This is the first slide, so when you will click enter or slide your show, this is your second, and when you again click on enter, this is the last slide। Is it clear to all of you? I have given you the basic idea without animation, without transition. First you all have to learn how you can insert slide, how you can change theme, how you can change font color, how you can change font text, and how you can insert images,
So this is the basic thing you have to learn. So advanced Microsoft PowerPoint we will learn in class 5th. Okay. Now tell me any doubt anyone in this presentation today.